مناظر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانا ما شمارا وشت کنی چونکہ احمد استگا کے گستگی دورو چا پیسر چیف جسٹس صاحب سرو کیا سپریم کورٹ ایک بینچ یا تایت نائلی کیس حوالہ کیس گوش داشتگا اوشی تہا میر خالد لانگو صاحب حوالہ ہم کا پتران بودتگا چونکہ آئیے کیس معطلی حوالہ ہم کا بودتگا تو چیف جسٹس صاحب ریمارکس داتگا کہ کرپشن نیب کہتے ہیں یا کرپشن ہے سہولت کار جوڑ مبی اور دومی نمگا مدستگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحبہ میر خالد لانگو صاحب درخواست کہتے ہیں آئیے واتر زورے کے بنیاد سرا کارج کو تگا تو چیف جسٹس صاحب یہ گوشگا کہ خالد لانگو صاحبہ 26 روچے اسی 26 بخشے 26 ماہ سزا کے دیگ بوتا کم سزا پرچہ دیگ بوتا او یہ بڑی مردم کے استاں نی الیکشن دور کنک بھی تو خالد لانگوا تیوگیں بلوچستان کے ہستے ہیں وارتا تو آئیے معاملہ کے ہستے ہیں کرپشن کلاسک کیس ہی آئیے روگا 2.25 ارب کلدار کے ہستے ہیں برآمد بوتا تو دومی نمگا 2024 2024 الیکشن بارزور کے حوالہ مقدمہ سزائے قید معطل کنگ حوالہ خالد لانگو صاحب نمگا کے درخواست دائر کنگ بوتا تو چیف جسٹس صاحب ریمارکس پد ما گندے کہ گوستگی روچا شیئر رد عملہ خالد لانگو صاحبہ کوئٹہ پریس کلب ایک پریس کانفرنس سے کو تگا تو یہ گوشک ہمیشہ کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں منٹلی فٹ نہیں اور عہدہ سرام فٹ نہیں تو آمانا چاہیے معافی بلوٹی تو یہ حوالہ یہ مزید چاہیے کچھ تھا میر خالد لانگو صاحبہ یہ گا پال دلگوش کنے موتی مراکشہ دی مابری کہ this honorable gentleman, the Chief Justice of Pakistan, is not fit for this position. He is mentally sick. He is not fit for this job. اور میں ابھی اپنے وکیلوں سے مشورہ کروں گا اگر انہوں نے کوئی راستہ قانون نکالا تو میں کوئی ضرور کیس دائر کروں گا تو ابھی مجھے تو بدنام کر دیا مجھے الیکشنز ہو رہے ہیں میرے سیاسی مخالفین سارا دن یہ چلاتے رہے تو اس چیز کا چیف جسٹس صاحب مجھ سے معافی مانگے نہیں مانگے چیف جسٹس صاحب کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے انہوں نے غلط کیا ہے برادر چاروں کش میں میر خالد لانگو صاحب کا پتال دلگوش کو تھا تو چونکہ گوشگا کہ چیف جسٹس صاحب کے چما معافی بلوٹی ہو دومی نمگا یہ ہم گوشتگا کہ ازر کے استا منی لوگا برآمد نبوتگاں کئی لوگا برآمد بوتگاں تو چیزا دروزانہ تو یہ میڈیا گو ہم باز گلا کو تگا کہ میڈیا کے استے ایک طرف آیا یہ منا کوریج نہ داتا برادر چاروں کا آیا زر نہیں حوالہ کہ آزار کئی لوگا برآمد بوتگاں چو برآمد تو چیک گوشتگا پالن دلگوش کریں پورا پاکستان گواہ ہے آپ گواہ ہیں میرا نیب کا کیس گواہ ہے کہ پیسے کس کے گھر سے نکلے میرے گھر سے تو 1 روپیہ نہیں نکلا کل آپ چیف جسٹس صاحب پر تو میں آؤں گا لیکن آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی تھی ابھی جو میڈیا کو ذمہ دار تھے آپ لوگوں نے اپنے مالکان کو اپنے چینلز کو بتانا تھا کہ جی ہم جانتے ہیں اس کے گھر سے پیسے نہیں نکلے ادھر کتا لائن سرا سابق مشیر خزانہ میر خالد لانگو صاحب امرداری کرنے گئے گوستنگ روچا یہ پریس کانفرنس کو چونگا کا پوال کو گیشن کا پتران کرنے السلام علیکم میر صاحب جی وعلیکم السلام میر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کل آپ نے ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی اس سے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کچھ ریمارکس کیے آپ کے حوالے سے تو ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عدالت نے آپ کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے تو کیا سپریم کورٹ میں آپ نے کوئی درخواست دائر کی آپ کی بھی اس دن کیس زیر سماعت تھی جی دیکھیے گزارش ہے میں ضرور اپنے وکلاء سے مشورہ کر رہا ہوں ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ no one is above law and no one should be above law سب کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر چلنا چاہیے میرا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے عدالت کا وہ میں نے اپیل کی ہے ہائی کورٹ میں تو وہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اب اسی معزز ہائی کورٹ نے 2 کیسز میں میرے کیس کی طرح سملر یہ کیسز کی طرح لوگوں کے 426 کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کی ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ججمنٹ تھی وہ سسپینڈ کر کے ان کو جیل سے نکالا اور وہ ابھی بھی سرو کر رہے ہیں تو میں نے بھی بلوچستان ہائی کورٹ سے یہی گزارش کی تھی کہ جو وہ ادھر آپ نے کیا مجھے بھی یہ ریلیف دے بلوچستان ہائی کورٹ نے نہیں دی چلے ٹھیک ہے یہاں قانون اور انصاف اور آئین تو نہیں ہے یہاں مائٹ از رائٹ جس کا جو دل چاہے جس فیصلہ کرے میں گیا سپریم کورٹ اب محترم عالی جا
जनाब चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब के पास मेरी एप्लीकेशन लगी थी 426 की कि जी मुझे मेरे ये 426 सस्पेंड करें, और 2 और ऑनरेबल जज साहिबान भी बैठे थे। तो मेरे वकील को फाइज ईसा साहब ने सुना ही नहीं। भाई आप आइन कानून क्या कहते हैं आप सुने, इस पे आप यस करें या नो करें। उन्होंने सुना ही नहीं। उनको आते ही उन्होंने जो केस सुना, बोला जी ये चाहिए वो केस है जो ट्रकों में पैसे निकले हैं और ये वो हैं, ये इस तरह हैं, ये उस तरह हैं, आप केस वापस लें। मेरे वकील को कहा कि क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था, तो मेरे वकील को कहा कि जी आप केस वापस लें। अगर आप केस वापस नहीं लेते हो, मैं नैब को नोटिस करता हूं कि वो आए कि इसका सजा क्यों ज्यादा ना किया जाए। जो ये आप मुझे बताओ, ये कानून है, ये इंसाफ है। मेरा ट्रायल चल रहा है हाई कोर्ट में और मोहतरम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि मैं इसका सजा बढ़ा दूंगा। तो मैं तो अपने वकला से मशवरा कर रहा हूं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिस तरह भी होगा मैं चीफ जस्टिस के खिलाफ भी जाऊंगा, उनके जो रिमार्क्स हैं उनके खिलाफ भी जाऊंगा जी, जरूर इंशाल्लाह। जो चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि सिर्फ 26 माह की सज़ा कम क्यों दी गई है, चूँकि आप जो स्कैंडल सामने आया उस वक्त जब आप मुशीर खजाना थे तो आपको रिहाई मिली, आप आज़ाद थे, तो 26 माह की कम सज़ा के बारे में उन्होंने बात की, क्योंकि आप 26 माह जो है खुद चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का इतराफ़ किया, कहा। तो ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि एक मामला मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ पाकिस्तान में कानून होना चाहिए कि सब की है, हर कोई अपना काम करे। जब अगर ये केस आपके पास आए, आपके पास लगे, तब आप ये बात कर सकते हैं। अभी जब ये केस हाई कोर्ट में है, आलिजा आपको बात करने की इजाजत नहीं है। आप हाई कोर्ट वाले केस पर कैसे रिमार्क्स दे सकते हैं? आप उधर असरअंदाज हो रहे हैं। इट मीन्स यू आर बाइस्ड इन दिस केस, यू आर बाइस्ड विथ मी, कि आपके पास एक केस लगा नहीं, आया नहीं, आप कैसे कहते हैं? उधर तो टीवी में आपके खिलाफ भी आया कि आपने चोरी किए पैसे, आपने लंदन में फ्लैट्स लिए हैं, लेकिन बाद में आप चोर नहीं निकले। टीवी पर तो रूमर्स पे तो बातें नहीं होती है ना सर। तो लेकिन मीर साहब आपने जो है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बंदों का जिक्र किया कि उनको इंसाफ मिला है, जो मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त दायर की, इमरान गिचकी और अली गुल कुर्द साहब को। तो क्या उनको भी ये इस केस में थे जो मुश्ताक रईसानी साहब था, या उनको अलग केस में इंसाफ मिला है, आपको नहीं मिला है? जी नहीं, उनका अलग केसेस हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की केसेस हैं और कानून के मुताबिक उनको इनको इंसाफ मिला है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सही फैसला किया है। कानून पाकिस्तान का कहता है उनको इंसाफ मिला है, लेकिन उसी चीफ जस्टिस साहब के हाई कोर्ट ने, उनकी टीम ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। तो लेकिन मीर साहब हम ये भी देखते हैं, जो अगर इंसाफ की बात होती है तो बलूचिस्तान में जो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं अक्सर ये गिला करते हैं कि हमें जो इंसाफ के बड़े बड़े इदारे हैं, या सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट्स हैं, हमें इंसाफ नहीं मिलता। जो अभी एक धरना भी ऑलरेडी चल रहा है इस्लामाबाद में, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलात में घंटों भर केस की समाअत होती है, लेकिन बलूचिस्तान के हवालों से अक्सर इन लोगों का गिला होता है। तो आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए इंसाफ नामी कोई चीज़ नहीं मुल्क के आला अदालतों में? जी, इंसाफ सस्ता और फौरी इंसाफ होना चाहिए। 25 मई 2021 को मेरा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला हुआ है। 2.5 साल गुजरने के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 2.5 साल गुजरने के बाद एक दफा मेरा केस नहीं सुना। महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तारीख देते रहे हैं। ये इस बेंच पे लगे तो कहते हैं नॉट बिफोर मी, कभी कहते हैं उधर नॉट बिफोर मी, कभी कहते हैं जी को अक्यूज्ड का वकील नहीं है, मौजूद है। 2.5 साल से उन्होंने हमें सुना नहीं, हमारी हियरिंग नहीं हुई है जनाब वाला। तो ये कहाँ इंसाफ देंगे? आप मुझे बताएं। इंसाफ फौरी और सस्ता इंसाफ की तवक्को है इधर? तो लेकिन मीर साहब आपने ये भी कहा कि मैं जो है अब मज़ीद जो है इस केस पे नहीं जाऊंगा। आपने 24 अक्टूबर 2024 का जिक्र किया, उसके बाद में केस चलाऊंगा, इससे पहले मैं केस नहीं चलाऊंगा। आपने इस बात किस तनाजुर में की? क्या आप चीफ जस्टिस साहब जो है अपने ओहदे से जो है रिटायर होंगे, उसके बाद आप इस केस को दोबारा फाइल करेंगे? ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस का
चीफ जस्टिस भी हमारी तरह इंसान है, हम अगर उनका एहतराम करते हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कि वो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उनके पास तौबा नौजुबिल्लाह खुदाई इख्तियारात नहीं है। उनको मेरे केस में रिमार्क नहीं देने चाहिए थे, उनको मेरे केस पे बात नहीं करना चाहिए थे, उनको मेरी 426 की एप्लीकेशन है उसी पे जब उन्होंने बात की है कि ट्रकों में पैसे निकले, जो कि उन्होंने झूठ बोला है, जो कि उन्होंने गलत बयानी की है। मेरे घर से कोई पैसा नहीं निकला, मुझसे कोई बरामदगी नैब की डॉक्यूमेंट्स, नैब का केस है, नहीं हुआ, तो वो बाइस्ड हैं। तो लिहाजा जब तक वो चीफ जस्टिस है, चूंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, तो जब तक वो चीफ जस्टिस हैं मैं बिल्कुल अपना केस नहीं चलाना चाहूंगा नैब का। तो मीर साहब, ये पैसे की बरामदगी की बात हुई थी, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने इसका जिक्र किया, तो ये कहाँ पर बरामद हुए थे उस वक्त ये पैसे? जी, नैब के बकौल जो नैब ने केस बनाया है कि वो सेक्रेटरी फाइनेंस के घर से बरामद हुए, मुझे तो नहीं पता कोई किसी बार जो अकल और सोच और फहम रखने वाला इंसान तो ज़हन ये चीज कबूल नहीं करता कि एक 21 ग्रेड का ऑफिसर और वो इतने 70, 80, 90 करोड़ अपने घर में कैश रखे। लेकिन नैब का दावा ये है, बाकी हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि राना सनाउल्लाह के गाड़ी से चर्च भी बरामद हुआ और फिर लोगों ने कस्में भी खाई, लेकिन वही राना सनाउल्लाह बाद में बरी भी हो गई। ठीक, लेकिन मीर साहब, आपकी जो केस है वो खारिज कर दी गई है, आप कहते हैं अब मैं ये केस दोबारा फाइल नहीं करूंगा, तो क्या आप जो मौजूदा इलेक्शन है उसमें आप हिस्सा नहीं लेंगे? आप कि मैंने नैब के केस के बारे में कहा कि मैं नैब का केस जब तक ये फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं वो मेरे केस में मेरे साथ बाइस्ड हैं, वो मैं नहीं चलाऊंगा कि इन्फ्लुएंस किया उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट को, जजेस को। इलेक्शंस के हवाले से मैं जरूर, अगर पाकिस्तान के कानून में, आइन में कोई और तरीका होगा उसके लिए मैं जरूर कंटेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तायात नायबी खत्म हो सकती है, मियां नवाज शरीफ को 15, 20, 10, 15 केसों में अगर रिलीफ मिल सकता है, तो अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूं तो फिर मुझे भी रिलीफ तो मिलना चाहिए। तो बिल्कुल फिर सब, लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कुछ बातें कही, जैसा कि आपने कहा कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑनरेबल काजी फायद ईसा साहब हैं वो जो है मेंटली फिट नहीं है, वो उस ओहदे पे जो है एक अहम जॉब है उसके लिए भी वो फिट नहीं है, तो मुझसे माफ़ी मांगे। हम देखते हैं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या तौहीन अदालत है वो ज़्यादा सियासतदानों पे लगता है, तो कुछ इदारे जो हैं उसको इस्तिस्ना हासिल है। आप नहीं समझते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है आने वाले वक्तों में भी ऐसा ना हो कि आप पे भी तौहीन अदालत लगे? कि मुझ पे तौहीन अदालत लगे ताकि मैं भी जाऊं अदालत के सामने बोलूं कि जो उन्होंने मेरे बारे में जो झूठ बोला, दुनिया गवाह, पाकिस्तान गवाह, मीडिया गवाह, नैब के डॉक्यूमेंट्स गवाह कि मेरे घर से पैसा नहीं निकला, ट्रकों में नहीं निकला, 1 रुपया नहीं निकला, और उन्होंने कहा कि ये नैब इनके साथ मिली हुई है, नैब ने इनकी सजा के खिलाफ अपील नहीं की, हालांकि नैब ने अपील की है। तो इधर उन्होंने मेरे खिलाफ झूठ बोला और मेरी तौहीन की, तो अगर मुझे तौहीन अदालत होती है तो फायद ईसा को भी तौहीन अदालत होना चाहिए। जो दूसरे जज बैठे होंगे तो मैं उनसे ये गुजारिश तो करूंगा ना। ठीक है, लेकिन मीर साहब, कल आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि सारा दिन जो है पूरा दिन मेरा मीडिया ट्रायल होता रहा और मेरा मौक़िफ़ लेने की कोशिश नहीं की गई, तो बुनियादी तौर पर हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से जो मनफी खबरें होते हैं वो हमारे नेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। तो जब ये स्कैंडल सामने आया उस वक़्त इसको बहुत ज़्यादा जो है उछाला गया, लेकिन जो मौक़िफ़ थी दूसरे फरीक की वो नहीं ली गई। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि आप भी मुशीर ख़जाना रहे हैं, बलूचिस्तान के कबायली के रहनुमा हैं और एक सियासी रहनुमा है, आपका मौक़िफ़ लिया जाए। तो लेकिन हम ये मीडिया की अगर बात करें तो बलूचिस्तान को कवरेज ही नहीं देता, बलूचिस्तान के हालात को, इश्यूज़ को बहुत दूर है, तो फिर हम क्या गिला करें, किससे गिला करें कि वो हमें कवरेज दे या हमारे मीडिया ट्रायल रोके? आप तो नहीं समझते हैं कि जो ये एक बहुत बड़ी सहाफ़ती बददियानती है जो हमारे मुल्क में हो रही है? जी, इस रविश को बदलना होगा, इस रविश को तब्दील करना होगा। देखिए जी, फायद ईसा का अगर मैं एहतराम करता हूँ, पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत एहतराम करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का आइन और कानून मेरे भी हकूक देता है ना, मेरे भी हकूक हैं। तो अगर जिस तरह फायद ईसा ने मेरे बारे में झूठ बोला, यही मीडिया आप सब जानते हैं कि मेरे घर से पैसे नहीं निकले, लेकिन इस मीडिया ने चलाया, फायद ईसा के झूठ को चलाया कि खालिद लांगो से पैसे बरामद हुए। तो आपको मुझे लेना चाहिए था, मेरा
पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन नहीं लिया। लेकिन जो कल मैं खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी, मैंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक टिकर भी नहीं देखा। तो इस रविश को तो चेंज होना चाहिए। जी जी। तो लेकिन मीर साहब, जो आप बिल्कुल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी आपको कवरेज नहीं दी गई, एक टेकर भी नहीं चला। लेकिन हम ये भी देखते हैं, चूँकि आप भी इस काबीना का हिस्सा रहे हैं, पार्लियामेंट बलूचिस्तान असम्बली में रहे, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की जो बजट है महकमा इत्तलात की, अखबारों या टीवी चैनल्स की, तो इसमें सबसे ज़्यादा और टीवी चैनल्स या अखबारात लेके जाते हैं जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से नहीं है, जो बलूचिस्तान के हकीकी मीडिया हैं वो मेरू में। तो जो रवश की आप बात करते हैं, आप नहीं समझते कि ये रवश भी तब्दील होनी चाहिए? जो हक हमारे अपना मीडिया का बनता है उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो एक तरफा मीडिया है बलूचिस्तान को कवरेज नहीं देता, बलूचिस्तान को मनफी दिखाता है, बलूचिस्तान के जो लीडरान हैं उनका मौक़िफ़ नहीं लेता। जो इश्तिहारात के हवाले से आप नहीं समझते कि इस पॉलिसी को भी तब्दील करने की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, ये ज्यादती अगर हमारे दौर में हुई, ये भी ज्यादती है और ये नहीं होनी चाहिए और इसका अजाला करना चाहिए। जो बलूचिस्तान का जो मीडिया है, जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ज्यादा ओबलाइज करना चाहिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान का मीडिया है वो अगर किसी अदाकार की बिल्ली बीमार हो जाए भी वो न्यूज़ चलाएगा। लेकिन मेरा जो फाइज ईसा ने मीडिया ट्रायल कराया है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो एक टिकर भी नहीं चलाएगा। तो बिल्कुल इस पे बलूचिस्तान हुकूमत को इस चीज़ के में सोचना चाहिए, बल्कि इस पर अमल दरामद करना चाहिए। जो बलूचिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, जो उनको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मर्दा चारू का मीर खालिद लांगो साहब साबिक मुशीर खजाना वस्तंगर ऊँचा सुप्रीम कोर्ट देखिए हवाला गपुत्रान तायत नायली केस हवाला मगदिस्त के आई तो का मीर खालिद लांगो साहब हम हवाला चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब गप को था तो गुश्त के इलेक्शन केस से समात आगा मध्य गप भी तो नेब के अस्ती करप्शन सहूलतकार हैं। तो आइए सुप्रीम कोर्ट हुक्म दाता कि जब तक सजाए फैसला मुअत्तल नबी आवद उम्मीदवार के असना इलेक्शन बार जोट न करना, तो अदालत खालिद लांगो दरखास्त वापस दूर के बुनियादा के हस्ते खारिज को था। तो चीफ जस्टिस साहब ये हम गुश्ता कि मीर खालिद लांगो साहब के हस्ते ये मजनी करप्शन को था, ये लोग ट्रकानी साहबा जरदरत का 2024 करोड़ 92 लाख कलदार बरामद बुद्धा आई वास्ता सिर्फ 26 माह सजा के हस्ते कम में अपर्चा दिया बुता उदोबिनी मद गेंदे के चीफ जस्टिस साहब ये हम गुश्ता के आइए पूरे बलूचिस्तान वार्ता तो ये मरदम के हस्ना इलेक्शन आची दूर कनक बेमा वो खालिद लांगोए मामला के हस्ते करप्शन क्लासिक केस है अरबा कलदर ये लोग बरामद बुता। तो इसे रद्द अमला वस्तंगे रोचा मीर खालिद लांगो साहब कोयटा प्रेस क्लब प्रेस कॉन्फ्रेंस को तगा तो आइया ये हम गुश्तगा के मामला के हस्ते अदालत आएँ और मामला मामा वद्दा केस दीमा नबरंदा वद्दे के चीफ जस्टिस साहब 24 अक्टूबर 2024 से रिटायर नबी ब्रेक की जरूरी पदाश में साड़ी भी गेशिंग पुत्रान करें।